Arabia is a land of unparalleled charm and beauty. अरब बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती वाली एक सरजमीन है. With its trackless deserts of sand dunes, रेत के तोदों के अपने बेनिशान सहराओं के साथ. In the dazzling rays of a tropical sun, इंतहाई गर्म सूरज की चुंदिया देने वाली किरणों में. Arabia is a land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of a tropical sun. इंतहाई गर्म सूरज की चुंदिया देने वाली किरणों में रेत के तोदों के अपने बेनिशान सहराओं के साथ अरब बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती वाली एक सरजमीन है. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. इसका तारों भरा आसमान शोहरा और स्याहों के तखय्युल को उबार चुका है. It was in this land, ये इसी सरजमीन में हुआ, that the रसूल was born, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे. In the city of Makkah, शहर मक्का में, which is about 50 miles from the Red Sea, जो बहीरा अहमर से 50 मील के फासले पर है. It was in this land that the Rasul was born, in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. ये इसी सरजमीन में हुआ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में, जो बहीरा अहमर से 50 मील के फासले पर है, पैदा हुए. The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. अरब बाशिंदे हैरत अंगेज हाफजे के मालिक थे और एक खुशगुफ्तार कौम थे. Their eloquence and memory found expression in their poetry. उनकी खुशगुफ्तारी और हाफजे ने उनकी शायरी में इजहार हासिल किया. Every year a fair was held for poetical competitions at Okaz. हर साल ओकाज में शायराना मुकाबलों के लिए एक मेला मुनक्कद किया जाता था. It is narrated that Hamad said to the Caliph Walid bin Yazid, ये बयान किया जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से फरमाया, I can recite to you, मैं आपके सामने तरतील से पढ़ सकता हूँ. For each letter of the alphabet, हरूफ ताजी के हर हर्फ के बदले 100 long poems, 100 तवील नज़में. Without taking into account short pieces, छोटी नज़मों को शुमार में लाए बगैर. And all of that composed exclusively by poets before the promulgation of Islam, और वो तमाम इस्लाम की इशाअत से कबल शोहरा के जरिए तालीफ की गई थी. I can recite to you for each letter of alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. मैं आपके सामने हरूफ ताजी के हर हर्फ के बदले 100 तवील नज़में छोटी नज़मों को खातिर में लाए बगैर तरतील से पढ़ सकता हूँ, और वह तमाम इशाअत इस्लाम से कबल शोरा के जरिए तालीफ की गई थी. It is no small wonder, ये छोटा मौजज़ा नहीं है, that Allah Almighty chose the Arabic language, कि अल्लाह जुल जलाल ने अरबी ज़बान को मुंतखब किया. For his final dispensation and the preservation of his word, अपने आखिरी निज़ाम फितरत और अपने पैगाम की हिफाजत के लिए. It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for his final dispensation and the preservation of his word. ये छोटा मौजज़ा नहीं है कि अल्लाह जुल जलाल ने अपने आखिरी निज़ाम फितरत और अपने पैगाम की हिफाजत के लिए अरबी ज़बान को मुंतखब किया. In the 5th and 6th centuries, 5वीं और 6ठी सदी ईस्वी में, mankind stood on the verge of chaos. बनी नो इंसान इंतशार के दाने पर खड़ा था. It seemed, ये दिखाई देता था,
that the civilization which had taken 4000 years to grow के तहजीब जो निशोनुमा पाने के लिए 4000 साल ले चुकी थी had started crumbling, रेजा रेजा होना शुरू हो चुकी थी। At this point in time, ज़माने के इस मुकाम पर Allah Almighty raised a Rasul from among themselves। Allah Zul Jalal ने उन्हीं में से एक रसूल मबूस फरमाया, who was to lift the humanity from ignorance into the light of faith, जिसने इंसानियत को जहालत से ईमान की रोशनी में बुलंद करना था। When Hazrat Muhammad was 38 years of age, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 वर्ष के हुए, he spent most of his time in solitude and meditation, तो आप अपना ज्यादातर वक्त तन्हाई और मुराकबे में गुजारते थे। In the cave of Hira, गारे हिरा में, he used to retire with food and water, आप खुराक और पानी के साथ किनारा कश हुआ करते थे। And spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty, और अल्लाह जुल जलाल की याद में अय्याम और हफ्ते गुजारा करते थे। The period of waiting had come to a close, इंतजार का अरसा खत्म हो चुका था। His heart was overflowing with profound compassion for humanity, आपका कल्ब इंसानियत के लिए गहरी हमदर्दी से छलक रहा था। He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice, गलत अकायद, समाजी बुराइयां, जुल्म और नाइंसाफी को खत्म करने की आप शदीद ख्वाहिश रखते थे। The moment had arrived when he was to be bestowed with नबूवत, वो घड़ी आ गई जब आपको नबूवत अता की जानी थी। One day when he was in the cave of Hira, एक दिन जब आप गारे हिरा में थे, हजरत जब्राइल came, हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम आए and conveyed to him the following message of Allah Almighty, और अल्लाह जुल जलाल का मुंदरजा झैल पैगाम आप तक पहुंचाया। Read in the name of thy Lord who created, अपने रब के नाम से पढ़ जिसने पैदा किया। Created man from a clot of congealed blood, इंसान को जमे खून के एक लोथले से पैदा किया। Read and thy Lord is most bountiful, पढ़ और तुम्हारा रब इंतहाई करीम है। Who taught the use of the pen, जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया। Taught man that which he knew not, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। The revelation of the divine message, खुदाई पैगाम का नज़ूल, which continued for the next 23 years, जो अगले 23 वर्ष तक जारी रहा, had begun, शुरू हो चुका था। And the Rasul had arisen to proclaim oneness of Allah and the unity of mankind, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तौहीद और इंसान की वहदनियत का प्रचार करने के लिए मबूस हो चुके थे। His mission was to destroy the nexus of superstitions, ignorance and disbelief, set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन तोहिम परस्ती, जहालत और बदएतिकादी के ताल्लुकात को तबाह करना, जिंदगी का आला तसव्वुर कायम करना और बनी नौ इंसान की ईमान की रोशनी और खुदाई सआदत की तरफ रहबरी करना था। Since this belief was threatening their dominance in the society, चूंकि यह अकीदा माशरे में उनके गलबे के लिए दहशत अंगेज था, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul and his followers. कुफारे अरब ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। They wanted them to renounce their cause and to take to idol worshipping. वो उनसे अपने मकसद से दस्तबरदार होने और बुत परस्ती इख्तियार करने की ख्वाहिश करते थे।
On one occasion, they sent a delegation to Rasul's kind and caring uncle Abu Talib. एक मौके पर उन्होंने आपके मेहरबान और शफीक चाचा अबू तालिब की तरफ एक वफद भेजा. They told him to restrain the Rasul from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. उन्होंने उन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जुल जलाल के पैगाम की तबलीग से बाज रहने या उनकी दुश्मनी का सामना करने का कहा. Finding himself in a dilemma, खुद को मखमसे में पाते हुए, he sent for his nephew. उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया. And explained to him the situation, और उन्हें सूरत-ए-हाल बताई. The Rasul responded with these memorable words. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज के साथ जवाब दिया. My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, मेरे मोहतरम चाचा, अगर वो मेरे दाएं हाथ में आफताब और बाएं हाथ में महताब रख दें, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah. इस सूरत में भी मैं अल्लाह की तौहीद का प्रचार तर्क नहीं करूंगा. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. मैं कोई अर्ज पर सच्चा दीन कायम करूंगा या इस तगदो में फना हो जाऊंगा. The Rasul's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अपने भतीजे के पुख्ता अज़म से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने जवाब दिया. Son of my brother, go thy way, none will dare touch thee. मेरे भतीजे, अपने रास्ते पर चलते रहो, कोई भी तुम्हें छूने की जुर्रत नहीं कर सकता. I shall never forsake thee. मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा. And the Rasul did go the way Allah Almighty had chosen for mankind. और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर चलते रहे जो अल्लाह जुल जलाल बनी नौ इंसान के लिए मुंतखब कर चुका था. Imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasul encountered all the challenges with grace and dignity. हदायत रब्बानी और पुख्ता अज़म से फैज़ याफ्ता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम आजमाइशों का खूबसूरती और शान और शौकत से मुकाबला किया. In no time, he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. आपने इंसान को फौरन दोनों रूहानी और दुनियावी दायरों में आला तरीन मुमकिना दर्जे तक बुलंद कर दिया. He was also a driving force behind the Arab conquest. आप अरब फतवात के पीछे भी एक मुहर्रिक कुव्वत थे. Which have created an everlasting impression on human history, जो इंसानी तारीख पर दायमी नक्श सबत कर चुकी हैं. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. इसमें कोई हैरानगी नहीं है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख में आफाकी तौर पर तस्लीम शुदा इंतहाई बारसूख शख्सियत हैं. In the word of Michael Hart, a great historian, अजीम तारीखदान माइकल हार्ट के अल्फाज में, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहरहाल दोनों इस्लामी दीनियात और उसके आम अखलाकी और शाइस्ता असूलों के जिम्मेदार थे. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. इसके साथ साथ नए मजहब की अशात और मजहबी इबादत कायम करने में आपने कलीदी किरदार अदा किया.
In fact, as the driving force behind the Arabs' conquest, he may well rank as the most influential political leader of all time. दरअसल अरब फतवात के पीछे मुहर्रिक कुव्वत के तौर पर आपकी बतौर तमाम ज़माने के इंतहाई बारसूख सियासी कायद के अच्छे तरीके से दर्जा बंदी की जा सकती है। The Arabs' conquest of the 7th century have continued to play an important role in human history down to the present day. 7वीं सदी की अरब फतवात इंसानी तारीख पर दौरे हाजिर तक अहम किरदार अदा करना जारी रख चुकी हैं। Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul's deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character. इंसान और माशरे का ऐसा कामल इनकलाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह जुल जलाल पर गहरे ईमान, इंसानियत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की शराफत के मरहून मिन्नत है। Indeed, his life is a perfect model to follow. यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अमल करने के लिए एक कामल नमूना है। In reply to a question about the life of the Rasul, Hazrat Aisha said, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुतालिक एक सवाल के जवाब में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, His morals and character are an embodiment of the Holy Quran. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार कुरान मजीद की तजसीम यानी सूरत गरी हैं। The final word about the savior of mankind goes to the Holy Quran. बनी नौ इंसान के नजात दहिंदा के बारे में आखिरी कौल कुरान मजीद में है। O Nabi, surely we have sent you as witness and a bearer of good news and as a warner. ए नबी, यकीनन हमने आपको बतौर एक शाहिद और बतौर खुशखबरी का कासिर और बतौर एक तंबीहकार भेजा है। And as one inviting to Allah by his permission and as a light giving torch, और उसकी इजाजत से बतौर अल्लाह का दाई और बतौर रोशनी देने वाला एक चिराग। Thanks for watching. Have the best of luck. Allah bless you. Ameen.